اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل باقی رہیں، مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی 10 جنوری کو ریاست مہاراشٹر کے بلڈانا ضلع کے جے پور کوتلی موتلا کے قریب جو گاؤں ہے، یہاں پر ایک شاندار راشٹریہ ایکتا کا پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس میں بڑی تعداد میں سادھو سنت اور ہندو مسلم جمع ہوں گے، اور مقرر خصوصی کے طور پر راشٹری ایکتا، ملک میں امن ایکتا کا ماحول، شانتی کا ماحول کیسے بنے، نفرتیں کیسی ختم ہو، اور یہ ملک کتنا پیارا ملک ہے، اس کو لے کر مقرر خصوصی کے طور پر، پرمکھ وکتا کے طور پر اور اس کاریہ کے ادھیکش کے طور پر مجھے بلایا گیا ہے۔ میں بلڈانا، موتلا، جے پور اور آس پاس کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئندہ کل 10 جنوری کو جے پور کوتلی میں یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ آپ شام 6 بجے کے قریب یہ پروگرام شروع ہوگا، وہاں پر آپ ضرور پہنچے اور اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر، زندگی کی بڑی پیاری خبر آج میں سنا رہا ہوں، اور اسے سناتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے باقاعدہ اللہ رب العزت سے اس کیس کے لیے اسپیشل دعا مانگی تھی، جو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے قبول کی، اس کا شکر ہے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ بلقیس بانو کے 11 مجرمین، وہ جو ریپسٹ تھے، وہ جو قاتل تھے، جن کو گجرات حکومت نے الیکشن سے پہلے 15 اگست کے دن ملک کی آزادی کا مذاق اڑاتے ہوئے ان 11 ریپ کرنے والوں کو چھڑوا دیا تھا، رہائی دلا دی تھی، اور پھر کیا ہوا تھا؟ ریپسٹوں کو ہار پہنایا گیا، مالائیں پہنائی گئی، ان کا ستکار ہوا، ان کو مٹھائیاں کھلائی گئی۔ جی ہاں، یعنی بی جے پی جو بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگاتی ہے، اسی بی جے پی نے بیٹیوں کے ریپ کرنے والوں کو چھڑانے کے لیے بڑی محنت کی تھی، اور الیکشن میں اس کا فائدہ انہیں مل گیا، اور بلقیس بانو کے 11 مجرم رہا ہو گئے تھے۔ لیکن بلقیس بانو ہمت نہیں ہاری، اور پھر بلقیس بانو نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور الحمدللہ یہ خبر آ گئی کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اور ان 11 مجرمین کو
रेपिस्टों को 2 हफ्तों के अंदर खुद को सुपुर्द करने का हुक्म दे दिया। जैसे ही ये फैसला आया, इस फैसले पर मुतासिरा यानी बिल्किस बानो के गांव में जश्न का माहौल नजर आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद बिल्किस बानो के गांव में पटाखा फोड़कर मुसलमानों ने और इंसाफ पसंद हिंदुओं ने जश्न मनाया, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि रेप करने वाले आजाद हो गए तो फिर आगे मुल्क में क्या होगा। बिल्किस बानो के इस फैसले को लेकर बाकायदा लोगों ने और सियासी और मिली जमातों के सरबराहों ने खुशियों का इजहार किया है और यह कहा है कि ये इंसाफ और बिल्किस बानो के जद्दोजहद की जीत है। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका गांधी, ब्रांदकरार, पवन खेड़ा, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, इन तमाम ने अदालत उज़्मा के फैसले पर खुशी का इजहार किया और कहा कि ये इंसाफ की जीत है और आगे चलकर ये फैसला मजलूमीन के बहुत काम आएगा। दिन दूसरी बड़ी हंगामा खेज खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। बिहार के शिक्षण मंत्री, एजुकेशन वजीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह का एक बयान आया। उस बयान पर काफी हंगामा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर का रास्ता ज़हनी गुलामी का रास्ता है, जबकि स्कूल का रास्ता रोशनी का रास्ता है। आरजेडी एमएलए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि मंदिर गुलामी का रास्ता है और तालीम रोशनी का रास्ता है। बिहार के वजीर तालीम प्रोफेसर चंद्र सिंह के बयान पर अब काफी हंगामा हो रहा है। उन्होंने अपने अल्फाज नहीं बल्कि हमारी मां सावित्री बाई फुले के अल्फाज को दोहराया है। ऐसा राष्ट्रीय जनता दल के रुकन असेंबली फतेह बहादुर ने उनके बयान की तायीद करते हुए कहा है। वहीं पर वजीर तालीम डॉक्टर चंद्रशेखर जो सावित्रीबाई फुले जयंती की तकरीब में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मंदिर का रास्ता ज़हनी गुलामी का रास्ता है, स्कूल का रास्ता रोशनी का रास्ता है, तो सावित्रीबाई फुले ने मुल्क में खवातीन और दर्ज फेरिस्त जातों में तालीमी बेदारी पैदा की थी और उनकी वजह से ही हमारे मुआशरे में दर्ज फेरिस्त जातों को एक मकाम मिला है। तो गोया कि कुछ लोग वजीर तालीम प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान की तायीद भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ लोग इस पर काफी हंगामा कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, केरला से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, केरला में फलस्तीन की हिमायत, फलस्तीन का सपोर्ट करने के जुर्म में 6 तलबा को, स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कोझिकोड जिला के फारूक कॉलेज के तलबा को 2 जमानतें पेश करने पर पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। पुलिस ने तलबा के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 448, 153 फसाद भड़काने के इरादे से इश्तिहाद अंगेजी करना और 427 और 34 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। खैर, केरला पुलिस ने 6 फलस्तीन के सपोर्ट करने वाले तलबा को कोझिकोड के करीब स्टारबक्स स्टोर पर बायकाट का पोस्टर चस्पा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। यानी गोया कि यह माना जा रहा है कि फलस्तीन का सपोर्ट, हालांकि मुल्क फलस्तीन का सपोर्ट कर रहा है। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी फलस्तीन के हक में है, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इंदिरा गांधी तक सब फलस्तीन की सपोर्ट और हिमायत में है। और केरला में फलस्तीन के सपोर्ट करने वाले 6 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया। झारखंड पुलिस की बर्बरता का एक बड़ा वाकया सामने आया है कि झारखंड पुलिस ने नाबालिग छोटे छोटे 8-10 मदरसे के बच्चों को मारा और ये कहा कि टोपी पहनने वाले सभी दहशतगर्द होते हैं। जी हाँ, खबर है, रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि हुज़ैफा इम्तियाज जो जख्मी है, उसका कहना है कि हम 8 से 9 बच्चे मदरसे के तालिब इल्म मक्का मस्जिद से किसी के घर कुरान पढ़ने के लिए जा रहे थे। इसी दरमियान हम हिंद पेड़ी थाने के सामने से गुजर रहे थे तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि बदमाशी मत करना, यहाँ पर मामू लोग रहते हैं। बस ये सुनकर एक पुलिस वाले सर हमारे पास आए और गाली बकने लगे और हमें मामू कहते हो, और गर्दन पकड़कर हमें थाने ले गए और पीटने लगे और हमारी गर्दन पकड़कर उठा दिया। मुतासिरा की गर्दन में नाखून के निशान भी लगे थे। इसके अलावा बीच बचाव कर रहे एक दीगर बच्चे को भी पुलिस ने मारा पीटा है। झारखंड पुलिस पर इस बर्बरता का इल्जाम लगा है और पुलिस वालों ने मदरसे के बच्चों के साथ में नाज़िबा अल्फाज कहते हुए कहा कि तुम टोपी वाले सभी दहशतगर्द होते हैं। और थाने में मौजूद एक आदमी ने गाली देते हुए कहा कि और मारो इनको।
नाज़रीन, राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में ज़िमनी असम्बली इलेक्शन में बीजेपी को बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त हुई है और कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने वहां के रियासती वजीर यानी मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और रियासती वजीर बराए नहरी और अकलियती उमूर सुरेंद्र पाल सिंह अपनी असेंबली सीट से इलेक्शन हार गए। कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने उनको 11,261 वोटों से शिकस्त दे दी है। साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत और कांग्रेस के रियासती सदर ने बाकायदा उनकी जीत पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। आइए दिन हज 2024 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि 1,75,000 यानी 1.25 लाख आज़मीन हज का कोटा हिंदुस्तान के लिए खास किया गया है। हुकूमत हिंद और सऊदी अरब में एग्रीमेंट हो गया और ये भी बात सामने आ रही है कि जो लोग पहली बार हज को जा रहे हैं उनको खुसूसी फायदा हो सकता है। हज 2024 के लिए हिंदुस्तान से 1.25 लाख आज़मीन के कोटे को हतमी शक्ल दे दी गई, जिसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हुज्जाज किराम के लिए 1,40,020 नशिस्तें खास की गई, जिससे पहली मरतबा हज का इरादा रखने वाले आम आज़मीन को बहुत फायदा पहुंचेगा। जहां 2024 में 35,005 आज़मीन हज को हज ग्रुप ऑपरेटर्स के जरिए जाने की इजाजत दी जाएगी। बताया जा रहा है कि खवातीन और अतफाल की तरक्की और अक़लियती उमूर की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और उमूर दाखिला और पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलिकत मुरलीधरन ने ममलिकत सऊदी के शहर जद्दा में ममलिकत सऊदी अरब के हज और उम्रा के वजीर इज्जत माब डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अर्राबिया के साथ बाहमी हज मुआहदे हज एग्रीमेंट 2024 पर सिग्नेचर कर दिए हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता कल एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि दफ़ा 370 जो ख़त्म की गई कश्मीर से, इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा और सबसे ज़्यादा नुकसान आज जम्मू के आवाम को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 1990 के बाद पुरआशोब दौर में जम्मू कश्मीर का तमाम ढांचा तहस नहस हो गया था। जमहूरियत और वर्क कल्चर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बेशतर पुल, सरकारी इमारतें, स्कूल और दीगर तालीमी इदारे खाकिस्तर हो गए थे और लोग खौफ व हिरास के साए तले जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने कहा कि 1996 में कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस वक्त आग में कूद कर जम्मू कश्मीर के अवाम को हमने उस पुरआशो दौर से निकालने की ठान ली और उस वक्त उसके लिए हमारे हजारों कारकुनों, ओहदेदारान और लीडरान ने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की। लेकिन आज इस वक्त बीजेपी मौजूदा सरकार ने दफा 370 को जो खत्म किया है, आज फिर जम्मू की आवाम इसका बड़ा खमियाजा और बड़ा नुकसान भुगत रही है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और तामीर और तरक्की के जो दावे कर रही है वो सब झूठे हैं और महज ज़बानी जमा खर्च है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। नाज़रीन, ऑनलाइन फ्रॉड और जालसाजी, धोखासाजी के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं। रोजाना हमें फोन आते हैं, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी जम्मू कश्मीर से, कि साहब आपके महाराष्ट्र में कोई बैंक है जो 1750 रुपए लेकर 2 लाख रुपए कर्ज आपको दे रहा है। मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूं कि इस वक्त ये पूरे के पूरे फ्रॉड और जालसाजी के वाकयात है। करोड़ों रुपए इन बैंकों ने लोगों को बेवकूफ बनाकर लूट लिया है और लोग भी अजीब और गरीब है, लालच में आ जाते हैं। जरा ये सोचना चाहिए कि
कौन आपको 1750 लेकर आपको बगैर पहचाने, आप कहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, कौन आपको महाराष्ट्र का आदमी आपको 2 लाख रुपए कर्ज बगैर पहचाने देगा? ये सब फ्रॉड के वाकयात है और ये तमाम के तमाम धोखा दही के वाकयात है। मैं आपकी जानकारी के लिए और आप तमाम को बचाने के लिए ये खबर दे रहा हूं। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि मेरी इस खबर को शेयर करें। हमारे यहाँ कोई ऐसा बैंक नहीं है महाराष्ट्र में जो आपको बगैर जाने पहचाने के, बगैर डॉक्यूमेंट जमा किए के आपको 2 लाख रुपए कर्ज दे। ये आपको लालच में लाते हैं कि आप 1750 रुपए पेड कीजिए, फिर उसके बाद में आपका फाइल तैयार हो जाएगा। फिर जैसे ही आपने 1750 रुपए दिए तो ये मजीद आपसे कहते हैं कि 5000 और जमा करना पड़ेगा। कई लोगों से इन लोगों ने 20-20 हजार और 50-50 हजार तक के निकाल लिया है और लोगों ने लालच में आकर इनको दे दिया है। ये सब के सब फ्रॉड है और इनके नाम मुसलमानों के जैसे हैं। ये कोई इस्लामिक बैंक नहीं है। इसलिए ऑनलाइन फ्रॉड, शॉपिंग, मुफ्त का कर्ज, महंगा सामान सस्ते में, गेम शो में इनाम या मजबूरी बताकर लूटना, ये कोई नई बात नहीं है, ये आम हो गया है। आप अपने आप को सतर्क और बेदार रखें और बेवकूफ, लालच में आकर बेवकूफ न बने। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं। ये अफवाह गुज़िश्ता रात 8 बजे के बाद बड़ी जोर से चली और पूरे महाराष्ट्र में, हमारे जलगांव शहर में भी 9 बजे के बाद से लेकर 12 बजे तक रात में पेट्रोल पंप पर जबरदस्त भीड़ नजर आई। जी हाँ, और इसलिए भी भीड़ नजर आई कि लोगों को डर लगने लगा और ये अफवाह फैलने लगी कि अब जो हड़ताल होने वाली है वो बेमुद्दत हड़ताल होने वाली है। हम भी इस अफवाह का शिकार हो गए, मैं खुद, और मैंने गुज़िश्ता कल तकरीबन 14,000 रुपए का डीजल जो है अपनी गाड़ियों में भर लिया, क्योंकि मेरे रोजाना सफर होते हैं। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि यह महज एक अफवाह है, अफवाह पर ध्यान न दें। मगर कभी कभी अफवाह, झूठ, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे प्यारे प्यारे जो मंत्री हजरात है और खुद हमारे लाडले वजीर आजम झूठ भी इतनी जबरदस्त अंदाज में बोलते हैं कि सच शर्मा जाए उसके सामने, सच मांद पड़ जाए और फीका पड़ जाए। तो कभी कभी अफवाहें भी झूठी ऐसी फैल जाती है कि जिसका हम जैसे लोग भी यकीन कर लेते हैं। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि सियासत में उम्र को लेकर अब चर्चा हो रही है। जी हाँ, सियासत के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए इसका भी GR निकाला जाए, ऐसा लोग अब कह रहे हैं। क्योंकि शरद पवार ग्रुप ने अजीत पवार को निशाना बनाते हुए कहा, क्योंकि अजीत पवार हमेशा शरद पवार की उम्र का तस्करा करते हैं कि अब वो बूढ़े हो गए हैं। तो अब शरद पवार ग्रुप ने उन्हें जवाब दिया है कि भैया, एक तरफ तो तुम शरद पवार की उम्र बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने लीडर जिनकी गोद में तुम बैठे हो, नरेंद्र मोदी, वो भी तो बुढ़े हो गए हैं। तो अपनी उनकी उम्र को भूलकर वो तीसरी बार वजीर आजम बनने की बात करते हैं। तो उनको भी तो मशवरा दो कि आप भी सियासत से रिटायरमेंट ले लें, आप बुढ़े हो गए और वो तो तीसरी बार वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी दोगली बातें अजीत पवार न करें। इस तरीके की खबर जो है सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि चलो आओ, अगर ऐसे ही है तो सियासत के लिए भी उम्र कितनी होनी चाहिए इसका GR निकाला जाए। और इस एतबार से फिर नरेंद्र मोदी भी बुढ़े हो गए हैं, उन्हें भी घर पर बिठाया जाए।